my dear students. How are you? Today we are going to start our third chapter of class 8. Punjab School Education Board, class 8, chapter number 3. And the name of the chapter is How Daddy Decided What He Wanted to Be. डैडी ने कैसे डिसाइड किया कि वो क्या बनना चाहते हैं. ठीक है, let's start the chapter. When Daddy was a little boy, he was often asked, "What do you want to be when you grow up?" Daddy always had an answer ready, but each time his answer was different. At first, he would say he wanted to be a night watchman. He liked to think while the whole town slept. The night watchman could walk about and make noises. He was quite certain he wanted to be a night watchman when he grew up. But then he thought of an ice cream man who came along daily with his bright green cart. If he becomes an ice cream man, he could have the cart and eat all the ice cream he wanted to. So little Daddy decided to be an ice cream man. So in the very first paragraph, we find that this is the story of little Daddy, author's own father, when he was a very small boy. जब वो बहुत ही छोटा लड़का था, उनके बारे में स्टोरी है कि वो उनको पता नहीं था वो क्या बनना चाहते हैं. तो जिस भी चीज को देखते थे, ही सेड कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा. तो वो क्या था कि सबसे पहले तो उनका मन था कि मैं वॉचमैन की ड्यूटी रात को होती है ना बेटा, तो वॉचमैन बनूंगा, क्योंकि वॉचमैन को ये फैसिलिटी होती है जब सारा टाउन सो रहा होता है तो वो जो भी शोर कर सकता है, विसल लगा सकता है, गलियों में घूम सकता है, अपनी स्टिक के साथ ऐसे से आवाज कर सकता है. एंड देन ही डिसाइडेड दैट, उसने बोला नहीं, मैं तो आइसक्रीम मैन बनूंगा, बिकॉज आइसक्रीम मैन के पास तो बहुत सारी गाड़ी होती है, उसमें बहुत सारी आइसक्रीम्स होती हैं. तो उसने फिर सेकेंड टाइम ये सोचा कि मैं एक आइसक्रीम वेंडर बनूंगा. Little Daddy's parents were surprised to hear that their son wanted to be an ice cream man. They thought he was only trying to be funny, but little Daddy seriously thought it would be a very tasty way of life when he grew up. उसके पापा मम्मा को बहुत हैरानगी तो होती, लेकिन वो कहते बच्चा ऐसे मजाक के लिए बोल रहा है, लेकिन डैडी सीरियसली कहते थे कि मैं आइसक्रीम मैन बनूंगा. Then one day little Daddy saw a man wearing a blue uniform at an auto workshop. The man was playing with all sorts of cars, but those were real cars, not toys. The man would crawl under the cars playing their strange game. एक बार क्या हुआ कि वो अपना डैडी जो थे, स्मॉल जब वो बच्चे थे, तो वो एक वर्कशॉप पे गए. उन्होंने देखा कि एक ब्लू यूनिफॉर्म में एक कोई आदमी है and he is doing something with the cars. He thought he is playing. उसको लगा कि शायद ये खेल रहे हैं कारों के साथ, क्योंकि वो क्या कर रहे थे. Who's that man? The little Daddy asked. छोटे पापा ने पूछा कि ये कौन है. He is a car mechanic, said one of the workers. वहां के जो वर्कर्स थे उनमें से एक ने कहा कि ये कार मैकेनिक है. Now little Daddy said he would be a car mechanic. He would play all the time with the cars. There could be nothing in the world more interesting, nothing truly. When Daddy said he would be a car mechanic, someone asked him, and then what about ice cream man? अब लिटिल डैडी को लगा कि कार मैकेनिक से बढ़िया काम तो हो ही नहीं सकता. हम लोग छोटी छोटी टॉय कार से खेलते हैं ना, तो ये तो बड़ी कार के साथ खेलने को मिलेगा. कभी आप कार के नीचे घुस सकते हो, कभी उसके अंदर बैठ सकते हो, कभी उसके पीछे जा सकते हो. तो ही डिसाइडेड कि नाउ ही वुड बी अ कार मैकेनिक. तो किसी ने मजाक में पूछा, बेटा अगर तूने कार मैकेनिक बनना है तो फिर वो आइसक्रीम वाले का क्या बना? यू आर ऑल्सो सेइंग अबाउट दैट. नाउ that was the problem. Indeed, Daddy had decided to become a car mechanic, but he didn't want to give up the bright green ice cream cart also, so he found a way out. Daddy थोड़े से परेशान तो हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो दोनों ही काम करने हैं. मैंने आइसक्रीम भी नहीं छोड़नी, क्योंकि उस गाड़ी में मुझे बहुत सारी आइसक्रीम्स मिलेंगी. तो उनका क्या आंसर था? I will be a car mechanic and an ice cream man. मैं दोनों तो बन सकता हूँ, उसने कहा, मैं तो दोनों ही बन सकता हूँ. Everyone was surprised. सभी हैरान हो गए. But little Daddy said, that won't be hard at all. I'll sell ice cream for some time in the morning. Then I'll go to auto workshop. There I will work with cars for some time and again go to sell more of ice cream. In the afternoon, I'll again go back to the workshop. Later, I'll go to sell more ice cream.
I'll park my green cart outside the workshop while I'm working inside. तो लिटिल डैडी ने क्या क्लैरिफिकेशन दी बेटा? उसने कहा कि मैं ऐसे करूंगा, सुबह पहले आइसक्रीम बेचूंगा, फिर मैं वर्कशॉप आ जाया करूंगा, फिर मैं थोड़ी सी आइसक्रीम बेचूंगा, फिर मैं अपनी वर्कशॉप में गाड़ियां ठीक करूंगा। और आपको पता है मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं अपनी जो आइसक्रीम वाली गाड़ी होगी ना, ग्रीन कार्ड, इसको मैं वर्कशॉप के बाहर खड़ी कर दूंगा। जब भी मन करेगा आइसक्रीम खा भी लूंगा, अगर कोई कस्टमर आ गया तो बेच भी दूंगा। Everyone laughed to hear little daddy. It made him angry, and he said, "If you laugh at me, I will be night watchman also. After all, there is nothing to do at night." सभी उसकी बात सुन के बहुत हंसे। तो उसने कहा कि अगर आप मेरा से मजाक उड़ाओगे ना, तो मैं वॉचमैन भी बन जाऊंगा। क्यों? कहता क्योंकि रात तो मेरे पास फ्री है ना, दिन में मैं आइसक्रीम भी बेचूंगा, गाड़ियां भी ठीक करूंगा, रात तो मेरे पास फ्री है, तो मैं रात में वॉचमैन भी बन सकता हूँ। देखिए छोटे से माइंड के, देखो कैसे कैसे व्हाट यू वांट टू बी। देन everyone had to agree with little daddy, but a few days later he changed his mind. He said he wanted to be a pilot, then he said he wanted to be an actor, and after grandpapa took him to an office, he decided to be a clerk. To be a sailor was also on his mind, or at least a shepherd. अब देखो बेटा, डेली जैसे वो जिस चीज को देखते हैं, उनकी जो माइंड है वो चेंज होता जाता है। कहते एक बार तो उन्होंने बोल दिया कि मैं जब जहाज को देखा तो मैं तो पायलट बन जाऊंगा, फिर कोई मूवी देखी तो बोला मैं तो एक्टर बनूंगा, एक बार ग्रैंड पापा के साथ ऑफिस में गया और कहने लगा कि मैं तो क्लर्क बनूंगा, और एक बार तो माइंड यहाँ तक पहुंच गया जब उसने देखा कि कोई भेड़ बकरियां चरा रहा है तो मैं शेफर्ड बन जाऊंगा, गडरिया बन जाऊंगा। फाइनली ही डिसाइडेड ही वांटेड टू बी अ डॉग, और एक दिन तो हद हो गई, उसने कहा कि मैं डॉग बनना चाहता हूं अभी। At all that day he ran around on all fours, barking at strangers. He even tried to bite an elderly lady when she wanted to pat his head. Little Daddy learned quite well how to bark, but he could not scratch behind his ear with his foot, the way all dogs do. He thought if he went outside and sat beside the street dog, he would learn it more quickly, and that was exactly what he did. अब उनका मन था कि मैंने तो डॉग बनना है, ठीक है। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि सारा दिन अपने हाथ और पांव के बल पे चले और घूमते रहे इधर उधर इधर उधर, और जब भी कोई स्ट्रेंजर दिखता उसके ऊपर वो बाकी करनी शुरू कर देते। तो एक बार एक लेडी ने उसको प्यार से उसको पैट किया, पैट होता है थपथपाना, ठीक है, उसके सिर के ऊपर ऐसे थपथपाया, तो ये उसको काटने को पड़े कि मैं खा जाऊंगा, जैसे डॉग्स होते हैं ना कई बार, दे जस्ट वांट टू बाइट, तो वो उसको खाने के लिए दौड़ा। अब वो उसने सोचा कि मैं सब कुछ तो कर सकता हूँ, मैं भौंक भी सकता हूँ, वैसे चल भी सकता हूँ, लेकिन जैसे डॉग्स इससे पीछे स्क्रैच करते हैं ना अपने पाँव के साथ, वो नहीं उसको करना आ रहा था, स्क्रैचिंग करनी नहीं आ रही थी, खुजलाना, स्क्रैचिंग खुजलाना, ठीक है। तो वो खुजलाना उसको आ नहीं रहा था। उसने सोचा मैं ऐसे करता हूँ, बाहर स्ट्रीट डॉग के पास जाके बैठता हूँ थोड़ी देर, जैसे ही बैठूंगा जैसे वो करेगा तो मैं भी अपना ट्राई करता जाऊंगा, ठीक है। जस्ट देन अ सेज केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, तभी एक साधु वहां से निकलते हैं। He stopped and watched Daddy for a while. Then he asked, "What are you doing?" "I'm trying to be a dog," little Daddy said. "Don't you want to be a man?" asked the sage. "I have been a man for a long time," said Daddy. "What sort of man are you? If you can't be a dog even, is that what a man is like?" अब इनकी कॉन्वर्सेशन है। साधु ने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं डॉग बन रहा हूँ। उसने कहा डॉग बन रहे हो? क्यों, तुम आदमी नहीं बनना चाहते हो? कहता वो तो मैं बहुत देर का, बहुत सालों का हूँ। तो साधु कहते फिर तुम कैसे आदमी हो, तुम डॉग नहीं बन सकते? अब थोड़ा कंफ्यूज हो गए जो छोटा सा बच्चा, छोटे डैडी जो है ये थोड़े कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा वेल व्हाट इज अ मैन लाइक, आदमी कैसे होते हैं? आई थिंक अबाउट दैट योरसेल्फ, सेज ने कहा कि ये तुम खुद सोचो। Said the sage and walked away. ये कह के वो चला गया। But little Daddy felt very ashamed of himself and began to think. He thought and thought. The more he thought, the more ashamed he was of himself. The sage had not explained to him what a man is like. But suddenly, Daddy knew what a man is like. And he realized another important thing also. It was that he was yet too small to know what he wanted to be. The next time he was asked when he wanted to be,
He thought of the sage and said, I want to be a man. अब जब सेज उसको ये चीज कह गया तो उसको बहुत फील हुआ कि क्या मैं वाकई में मैं एक सही आदमी नहीं, मैं आदमी नहीं बना हूं। तो वो डेली सोचने लग जाता है। तो अब थोड़ा उसकी मैच्योर हो गया माइंड। तो अब जब भी उससे कोई कुछ पूछता था ना, तो उसको अपनी पहली वाली बच्चों वाली हरकतें याद आती थी, उसे बहुत शर्म फील होती थी। अब जब भी उससे कोई पूछता कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो सबसे पहले कहता मैं तो सबसे पहले एक आदमी बनना चाहता हूँ। और वो हैरान था कि उसके इस आंसर के ऊपर अब कोई नहीं हंस रहा। अब सभी उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। No one laughed when little daddy said this, and that was the best answer he could think of. He still thinks so and always says to me. वो आज भी बड़े हो गए हैं, ये क्योंकि ऑथर ने लिखी है ना, तो ऑथर कह रहा है कि अब तो पापा बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी मुझे ये चीज समझाते हैं। The only important thing you have to remember is that you must be a good man. मुझे ये समझाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू शुड बी ए गुड मैन, तुम एक अच्छी आदमी बनो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वट एवर यू वॉन्ट टू बी। कहती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम जो भी बनना चाहते हो, whether you want to be a pilot, a shepherd, a sailor, an ice cream man or whatever. चाहे तुम पायलट बन जाओ, चाहे तुम शेफर्ड बन जाओ, चाहे तुम नाविक सेलर बन जाओ, या फिर आइसक्रीम मैन बन जाओ, या कुछ भी, whatever means कुछ भी। And the man does not really have to know how to scratch behind his car with his foot. कहते इंसान को ये सीखने की कोई जरूरत नहीं है कि अपने कान को खुजलाना कैसे है। Okay, so see what an interesting story this was. When we are small, we have different aims. Whatever we see, we just want to be that. The right thing is that we should be a perfect man. We should have good qualities. Okay, students, you enjoyed the story. I know very much that you enjoyed it very much. So we will meet again with our next video. In that video, I will tell you the question answers of this chapter. Till then, keep watching. And this is the time to say bye-bye.